सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 13ਵਾਂ ਚੈप्टर ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੈप्टर ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ 13ਵਾਂ ਚੈप्टर ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਇਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਆਇਤਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ठोस आकृतियां बारे तुसी 9वीं च भी पढ़ चुके हो बेटा। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪਸਾਰੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਘਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਹੈ 6 ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਘਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘਨ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹਦਾ ਵਰਗਾਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਏ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਰ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 4a ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਹੇਠਲਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 6 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 6a ਸਕੁਅਰ ਆ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਘਨਾਵ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਉਚਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ a ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਇਤਨ a ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਘਨਾਵ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਘਨਾਵ ਦੇਖੋ, ਘਨਾਵ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਇਤਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਰਗਾਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ, ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 6 ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਚਾਈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ 'ਚ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ l ਪਲੱਸ b ਲੰਬਾਈ ਜੋੜ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਪਾਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਆ ਗਿਆ, 2 ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ LB ਪਲੱਸ BH ਪਲੱਸ HL ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਤਨ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ LBH, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ। ਇੱਕ ਘਨਾਵ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਲਨ। ਵੇਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਆ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉੱਨ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੂਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੂਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ 2 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 2πrh ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ πr ਸਕੁਅਰ 2 ਵਾਰੀ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ 2πr ਸਕੁਅਰ ਜੋੜ ਕੇ 2πr ਸਾਂਝਾ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 2πr ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ h ਪਲੱਸ r। ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਇਤਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆਇਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? πr ਸਕੁਅਰ h। ਇਹਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੰਕੂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸ਼ੰਕੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੰਕੂ ਕਿਹੜੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਬਰਥਡੇ ਕੈਪ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਕੈਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕੂ ਦੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੇਠੋਂ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤਿਰਛੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਆ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੰਕੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ πr l ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ h। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ l ਲੈਣੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕਰ ਉੱਚਾ ਓਨੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ l ਹੋਏਗੀ πr l ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੰਕੂ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੇਠਲੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ πr l ਪਲੱਸ r। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਜੇਕਰ ਆਇਤਨ, ਤਾਂ ਆਇਤਨ ਬੇਟੇ ਇਹਦਾ
शंकु का आयतन है जिहड़ा वेलन के आयतन का तीजा हिस्सा हुंदा है, क्योंकि असी एक वेलन विचों 3 शंकु कढ सकते हैं। इहदे विचों असी 3 बराबर के शंकु कढ सकते हैं। मतलब 3 बराबर अर्धव्यास के जे शंकु लईए तो उन्हां दा जे आपां समान इहदे विच पाईए तो इन्हां दा आयतन बराबर होएगा भी 3 शंकुआं नूं मिला के एक वेलन बनता है बराबर आकार दे अंदर जदों आपां अर्धव्यास लैंदे आ तो इहदा आयतन भी 1/3 हो जाएगा वेलन के आयतन का। ठीक है। इस तो बाद आ जाता है अपने कोल गोला। गोला की है? बॉल फुटबॉल तुसीं देखदे ही हो। चक्कर ते गोले च भी फर्क हुंदा है। कई तो कह दिंदे भी चूड़ी कढ़ाई साडा जिहड़ा एक ही है गोल है, नहीं वो खोखला हुंदा है, उसनूं असीं चक्कर कहने आ। तो गोला की है? ठोस आकृति है। ठीक है, अंदरों ठोस है ना, तो इहदे च भावें हवा भरी है, बैलून है, कोई गोल बैलून है, नींबू है, संतरा है, गोल शेप किसी भी चीज़ की, तो उसनूं असीं गोला कहने आ। गोले का बेटे अपने कोल वक्कर सतह का खेत्रफल की है। हुण वक्कर सतह इहदी किहड़ी है? आ सारी वक्कर मतलब टेढ़ी सतह जिन्हों कह दिंदे आ पासवीं सतह, इहदे पासे ही है सारियां दी वक्कर सतह। तो इसका खेत्रफल की आ जाएगा बेटे 4 पाई आर स्क्वायर। तो कुल सतह का खेत्रफल इहदी वक्कर सतह भी यही है, कुल सतह भी यही है, उपर थल्ले कुछ होर तो है ही नहीं इहदे, तो इस करके भी सेम रहिंदा है। तो आयतन इहदा 4/3 पाई आर क्यूब हुंदा है, ये याद रखना बेटे। इस तो बाद अपने को आ जाता है अर्धगोला। अर्धगोला मतलब आ जिस तरह अपने को गोला है, ठीक है, जे इनू असी सेंटर चो कट दिए, आ कटता तो 2 साडे कोल अर्धगोले बन गए। ठीक है, तो 2 अर्धगोले बन गए साडे कोल एक गोले नू कट के। तो अर्धगोले का जो असी खेत्रफल करना है, तो इहदा जे असी पासवीं सतह का खेत्रफल करना चाहते हैं वक्कर सतह का, तो यह होएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरी का 4 पाई आर स्क्वायर होंदा है, इहदा बटा 2 करता था 2 पाई आर स्क्वायर रह गया। जे असी इहदी कुल सतह का खेत्रफल बेटे करना चाहते हैं, कुल सतह विच हुण देखो चक्कर का तो गोले का तो सेम ही सी, हुण अर्धगोले का जो असी कुल सतह तो वक्कर सतह तो कुल सतह ते जाना है, तो इहदे विच एक आ सतह भी जोड़नी पएगी सानू। आ ब्लू कलर नाल तुहानू दिखाई दे रही होएगी, शीट लगाई हुई है ब्लू कलर की। तो इहदे विच असी 2 पाई आर स्क्वायर विच एक आ चक्कर का खेत्रफल जोड़ांगे। चक्कर का खेत्रफल कितना हुंदा है? पाई आर स्क्वायर, सारिआं नूं पता ही होएगा। तो 2 ते 1 3 पाई आर स्क्वायर बन गया कुल सतह का खेत्रफल। इस तरह ही जे असी इहदा आयतन करना है अर्धगोले का, तो आयतन बेटे की होएगा इहदा 4/3 सी गोले का, तो इहदा अद्ध कर दो तो 2/3 रह गया, 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे फार्मूले बहुत ही ध्यान नाल बेटा याद करने हैं। ये सारियां ठोस आकृतियां, ठोस आकृतियां दे असी कर ले फार्मूले। इन्हां फार्मूलियां विचों तुहानूं बहुत सारे सवाल आउंदे आ बेटे। फार्मूलियां नाल संबंधित मिलान करो दे सवाल भी आ जाते हैं, खाली थावां भी आ जांदियां, सही गलत भी आ जाते हैं। फार्मूले चंगी तरह याद रखने हैं, 2-3 नंबर तो इहदे चों पक्के ही है तुहाडे। तो देखो सब तो पहला आपां करदे हां खाली थावां भरो। खाली थावां च पहली खाली थां है घनाव दी कुल सतह का खेत्रफल की हुंदा। तो आपां फार्मूले सारे याद है, बस हुण तां लिखना ही है। घनाव दी कुल सतह का खेत्रफल की हुंदा है? हाँ जी बोलो, 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। दूजा वेलन की कुल सतह का खेत्रफल। वेलन की कुल सतह का असीं कीता सी खेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट च R प्लस H। तीजा अपने कोल अर्धगोले की कुल सतह का खेत्रफल। तो अर्धगोले की कुल सतह का खेत्रफल भी तुसीं लिख चुके हो 3 पाई आर स्क्वायर। इस तो बाद शंकु की कुल सतह का खेत्रफल बेटे की हुंदा है? शंकु की कुल सतह का खेत्रफल पाई आर ब्रैकेट च फिर R प्लस L या L प्लस R कुछ भी लिख लो, इको ही गल है। घन की कुल सतह का खेत्रफल, घन का तुहानूं दस्सिया सी कुल सतह मतलब 6 पासियां दा 6A स्क्वायर। ए की है? घन की भुजा हुंदी है। गोले की कुल सतह का खेत्रफल अगों आ गया, ये याद ही रखना अपने कोल गोले का कुल सतह का ते वक्कर सतह का खेत्रफल सेम हुंदा है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सी बेटे अपना पहला सवाल। इस तरह खेत्रफल दियां खाली थावां आईयां, इस तरह ही आयतन दियां भी खाली थावां आ सकदियां तुहानूं। तो इस तो बाद दूजा सवाल आपां देखो करांगे, एक समान आधार दे अर्ध व्यास ते ऊंचाई वाले शंकु ते सिलेंडर दे आयतन च संबंध दसो। पहला तो देखो आपां नूं समान आधार वाला शंकु ते सिलेंडर चाहिए। आ देखो मेरे कोल पिया है, आ पिया मेरे कोल शंकु ते आ पिया सिलेंडर।
देखो इन्हां दा समान आधार ते समान उचाई, उचाई आलमोस्ट समान है, ठीक है, बराबर उचाई है इन्हां दी, एच इहदा ते इहदा बराबर है। इसका जिहड़ा आधार है, आधार का मतलब अर्ध व्यास भी बराबर होना चाहिए इहदे, तो यह भी आलमोस्ट बराबर जिहा है। तो इन्हां दे आपां विच संबंध दसना, तुहानूं वैसे मैं पहला फार्मूले करवाए उदों भी दस चुकी हाँ भी इहदा खेत्रफल इस तो आयतन इस तो तीजा हिस्सा हुंदा, तो यही चीज़ नूं आपां सवाल राहीं भी सिद्ध करांगे। तो इस तो बाद आपां करांगे बेटे दूजा सवाल जी। दूजा सवाल है बेटे, शंकु दा आयतन ते वेलन दे आयतन च असीं संबंध दसना है। तो शंकु दा आयतन की हुंदा है, फार्मूला बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ते वेलन दा आयतन की हुंदा है, वेलन दा आयतन असीं लिखांगे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच तो कट्टिया जाएगा, पाई नाल पाई कट्टिया गया, आर स्क्वायर नाल आर स्क्वायर, एच नाल एच, रह के गया अपने कोल 1/3। इहदा मतलब की होया 1/3/1 रह गया इत्थों, मतलब कि जिहड़ा शंकु दा आयतन है वह वेलन दे आयतन दा तीजा हिस्सा हुंदा है, ठीक है। तो जा आपां कह सकते हैं भी वेलन दा आयतन है जिहड़ा, वेलन दा आयतन, आयतन नूं वॉल्यूम कह दिंदे आ, वी नाल लिख दूं मैं, वेलन दा वॉल्यूम है जिहड़ा 3 गुणा होवेगा किंदे तो, शंकु तो, ठीक है। वेलन दा वॉल्यूम 3 गुणा होवेगा, ठीक है बेटा, ये संबंध हो गया। अगों असीं करांगे बेटा तीजा सवाल। तीजा सवाल अपने कोल चक्कर दे घेरे ते व्यास दा अनुपात पता करो। चक्कर दा घेरा, देखो एक चक्कर है, चक्कर तो दस्सिया सी चक्कर ते गोले च फर्क हुंदा है, ये चक्कर है बेटे। चक्कर दा असीं घेरा लेना है, घेरा देखो जिहड़ी लाल बाउंड्री जी है, लाल कलर नाल सर्कल किया होया है, तो इसनूं असीं चक्कर दा घेरा कहने आ, 4 चफेरे हुंदे। ते इस दे व्यास विच संबंध दसना है। आ केंद्र बिंदु है ओ साडे कोल, आ साडे कोल की हो जाएगा अर्ध व्यास, ते व्यास किहड़ा है आ पूरा जिहड़ा तुहानूं हरे रंग नाल दिखाई दे रहा है, हरे रंग की जिहड़ी लाइन दिख रही है, थ्रैड लगाया होया मैं, तो ये साडे कोल व्यास शो कर रहा है। इनू असीं किवें लिख सकते हैं, ये अर्ध व्यास है, तो ये 2 अर्ध व्यासां नूं मिला के की बन जाता बेटे, व्यास बन जाता है। तो मतलब आ पूरा जिहड़ा इनू असीं की लिख सकते हैं, व्यास नूं 2r, एक आरा हो गया अर्ध व्यास, एक आरा हो गया, तो कुल मिला के 2r बन गया। तो इनका घेरा तुहानूं पता होगा फार्मूला, चक्कर दे घेरे दा फार्मूला तुसीं पहलां कीता होया छोटियां क्लासां च बेटे, घेरा हुंदा है 2πr। तो असीं इहदा हुण किवें अनुपात पता करांगे, चक्कर दा देखो आपां अनुपात काहदा करना, घेरे ते व्यास दा अनुपात पता करो। तो पहलां असीं लिखांगे चक्कर दा घेरा, जिहड़ी चीज़ उन्हें पहलां कही है वो पहलां लिखनी है, चक्कर दा घेरा, अनुपात मतलब बटा ला दो चक्कर दा व्यास, चक्कर दा व्यास। घेरे दा फार्मूला लिख दो पहला बेटे, घेरे दा फार्मूला अपने को आ गया 2πr, ते व्यास दा फार्मूला, व्यास की हुंदा है आर दा तुहानूं दस्सिया दुगना 2r, व्यास आ गया साडे कोल 2r, तो 2 नाल 2 कट्टिया गया, आर नाल आर कट्टिया गया, रह गया π/1। तो इनू असीं अनुपात च लिखना होवे तो की लिख सकते हैं, π/1 साडा उत्तर आ गया, चक्कर दे घेरे ते व्यास दा अनुपात आ गया बेटे, ठीक है। इस तो बाद चौथा क्वेश्चन है अपने कोल, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन तो 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किन्ने घन बनाए जा सकते हैं। देखो घन की हुंदा तुहानूं दस्सिया सी मैं, एक घन है अपने कोल, मान लो इनकी भुजा जिहड़ी की है 10 सेंटीमीटर है, तो सारिया भुजावां 10 सेंटीमीटर होणगियां, लंबाई चौड़ाई उचाई, ठीक है, सारा कुछ अपने कोल 10-10 सेंटीमीटर होएगा, क्योंकि एक घन है, इनकी लंबाई चौड़ाई उचाई बराबर हुंदी है। तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन तो आप छोटे छोटे घन बनाने, 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाले किन्ने घन बना सकते हैं। तो देखो वड्डे तो आप छोटे घन बनाने हैं जी, वड्डे घन तो छोटे छोटे घन करने हैं, तो की बराबर होना चाहिए, छोटे घन जिन्ने भी बनणगे उन्हां दा सारियां दा आयतन वड्डे घन दे आयतन दे बराबर होएगा। तो आप हुण किवें करांगे इहनूं, देखो चौथा क्वेश्चन, घन दी भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ते घन दा
आयतन कढ दईए। आयतन का फार्मूला की हुंदा है? हाँ जी शाबाश बेटे बोलो, फार्मूले कराए सी। घन का आयतन की हुंदा बेटे? ए क्यूब। ए भुजा हुंदी है तो भुजा का क्यूब 10 का क्यूब आ गया अपने कोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया वड्डे घन का। इहदे तो असीं जिहड़े छोटे घन बनाने हैं वो किन्ने किन्ने दे बनणगे? देखो हुण लिखो छोटे घन दी भुजा किन्नी दित्ती है आपां नूं बेटा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर ते घन दा आयतन करना। फिर आपां आयतन नूं असीं वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। छोटे घन का आयतन कितना आ जाएगा बेटे? ए क्यूब। फार्मूला तुहानूं दस्सिआ है। ए दी जगह ते हुण आपां भर दांगे 5, तो 5 का क्यूब 5 5 25 5 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया अपने कोल। आपां करना किसी भी किन्ने घन बनाए जा सकते हैं, घनां दी संख्या करनी है। तो हुण वड्डे घन दे आयतन नूं छोटे घन दे आयतन नाल की कर दांगे? भाग कर दांगे। इहनूं असीं V1 कह दिंदे आ, जिहड़ा पहला आयतन कढिया सी वड्डे घन दा, इहनूं V1। जिहड़ा छोटे घन दा कढिया सी इहनूं V2 कह दिंदे आ। असीं की करना चाहुंदे आ? घनां दी संख्या। हुण असीं लिखांगे घनां दी संख्या किंदे बराबर आ जाएगी बेटा? ये V1 बटा V2। वड्डे घन दा किन्ना आया सी आयतन अपने कोल? 1000 घन सेंटीमीटर ते छोटे घन दा 125 घन सेंटीमीटर। तो असीं इहनूं भाग कर दईए 1000 घन सेंटीमीटर बटा 125। इहनूं कट्टोगे तो ये अपने कोल घनां दी संख्या जो 125 8 1000 हुंदा है। तो अपने कोल आ गए भी इस तो असीं 8 घन बना सकते हाँ। ये साडा उत्तर आ गया बेटे। ठीक है, समझ आ गई होएगी मेरे ख्याल सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत सौखे सवाल है। इस तो अगे आपां 5वां सवाल करांगे। क्रमवार 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ते 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यासां वाले धातु के 3 ठोस गोलियां नूं पिघला के एक वड्डा ठोस गोला बनाया जाता है। इस तरह बने गोले का अर्ध व्यास पता करो। तो बेटे असीं की करना है? साडे कोल देखो 3 गोले दिते हुए है। 3 सेंटीमीटर का एक है अपने कोल 4 सेंटीमीटर का गोला, एक है 5 सेंटीमीटर का गोला। दिख रहे होंगे तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। 3 4 ते 5 सेंटीमीटर के 3 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ गोले है। इन्हां तिन्नां नूं कहंदे असीं पिघला दिता। ये धातु दे बने है तो इन्हां नूं पिघला दिता जांदा है। जदों इन्हां तिन्नां नूं पिघला के एक वड्डा गोला बनाया जांदा है। आ गोला बन गया एक वड्डा। इन्हां तिन्नां नूं पिघला के साडे कोल एडा वड्डा एक गोला बन गया। तो इस गोले का असीं की करना चाहते हैं? अर्ध व्यास। सानूं इहदा पता नहीं, इहदा असीं अर्ध व्यास किवें पता करांगे बेटे? तो साडे कोल देखो की बराबर होएगा इन्हां दा? आयतन ही बराबर होएगा। ठीक है, मटीरियल तो सारिਆਂ ते अड्ड अड्ड लग्या ही होया। तो खेत्रफल तो पता नहीं सानूं। आयतन जदों भी कोई भी सवाल बेटे तुहानूं आ जांदा पिघला के शब्द जिंदे च आ जांदा है कि किसी भी आकृति नूं पिघला के कोई होर दूजी ठोस आकृति बनाई जाती है। तो एक गल याद रख लो, उदों असीं हमेशा की करना हुंदा बेटे? आयतन करना हुंदा। दोनों आकृतियों का आयतन बराबर हुंदा। हुण 3 गोलियां नूं पिघला के एक वड्डा गोला बनाया है। तो तिन्नां गोलियां का आयतन जोड़ कर दिए तो किंदे बराबर होएगा? वड्डे गोले दे आयतन दे बराबर रखांगे असीं। तो इस तरीके नाल असीं आर पता करांगे वड्डे गोले दी। तो करिए आपां सवाल जी। तो रजे पहला गोला सी जिहड़ा अपने कोल 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला, इहनूं आपां R1 मान लैंदे आं। दे अर्ध व्यास नूं R1 है अपने कोल 3 सेंटीमीटर। दूजा गोला सी 4 सेंटीमीटर वाला जिंदा अर्ध व्यास 4 सेंटीमीटर सी। इहनूं असीं इहदे अर्ध व्यास नूं R2 मान लिया। तीजा गोला सी साडे कोल 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाला, तो इसनूं असीं R3 मान लिया इहदे अर्ध व्यास नूं। वड्डे गोले दा जिंदा असीं R पता करना सी, इहदे R नूं असीं वड्डा R ही मान लिया क्योंकि वड्डा गोला सी तो वड्डा ही R मान लिया सी। ठीक है बेटे, तो हुण असीं R पता करना चाहते हैं। असीं इन्हां तिन्नां दा आयतन कड्डांगे। गोले दा आयतन दा फार्मूला की हुंदा है? 4/3 पाई R क्यूब। तो हुण R दी जगह ते असीं देखो इहदा आयतन असीं मान लैंदे आ V1 है, दूजे गोले दा V2 वॉल्यूम 2, तीजे गोले दा V3, वड्डे गोले दा V। ठीक है, डिफरेंशिएट करते इस तरीके नाल असीं 1 2 3 नंबर पा के। तो हुण पहले गोले का जो असीं आयतन लिखना इहदा फार्मूला हुंदा 4/3 पाई R क्यूब। तो इत्थे हुण R नहीं लिखना, असीं की लिखना बेटे? R1 क्यूब।
दूजे गोले के आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब, तीजे 4/3 पाई r3 क्यूब। वड्डे गोले का आयतन लिखिया जो 4/3 पाई वड्डा r पाके क्यूब। हुण देखो इहदे चों असीं 4/3 पाई नूं साझा बाहर कढ दिंदे आ, सारियां च आ रहा 4/3 पाई 4/3 पाई। तो अंदर साडे कोल की बच गया r1 क्यूब प्लस इत्थों की रह गया r2 क्यूब, इत्थों 4/3 पाई तो बाहर गया r3 क्यूब रह गया बराबर किंदे इत्थों 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। हुण बेटे 4/3 पाई है जिहड़ा 4/3 नाल 4/3 कट्टिया गया, पाई नाल पाई कट्टिया गया, तो साडे कोल आ कुछ बाकी रह गया। R1 दी इत्थे हुण वैल्यू भर दिंदे आपां नूं सारिआं दे मुੱਲ पता है, R1 R2 R3 दे तां पता ही है ना। ये भर दो R1 क्यूब कितना हो गया 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस R3 सी साडे कोल 5 तो 5 का क्यूब बराबर R क्यूब। R असी पता करना है। 3 क्यूब कितना होंदा 3 तिया 9 तिया 27, शाबाश। 4 का क्यूब बेटे 4 चौकी 16 चौकी 64 ते 5 का क्यूब 5 5 25 5 125। हाँ जी, तो 125 64 ते 27 का जोड़ कर दोगे, ये कुल जोड़ करके तुहाडे कोल आ गया 216 बराबर R क्यूब से आ गया। 216 किंदा क्यूब हुंदा बेटे 216 नूं असीं की लिख सकते हैं 6 का क्यूब बराबर आ गया R दे क्यूब नाल क्यूब कट दिए तो साडे कोल R दा मुੱਲ कितना आ गया बेटे 6, तो 6 सेंटीमीटर साडा उत्तर आ गया। वड्डे गोले का जिहड़ा अर्ध व्यास होएगा वो साडे कोल कितना होएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है बेटे, इस तो बाद असी अगला सवाल करांगे। समझ आ गई होएगी तो सारे नूं बहुत आसान सी ते बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटे ये सवाल, ध्यान नाल करना है। अखीरी सवाल आपां हुण करदे हां। एक कलमदान घनाव दे आकार दी लकड़ी नाल बनिया होया है। देखो बहुत मेहनत करके बेटा मैं कलमदान भी बनाया है, ते आ देखो एक कलमदान है, ठीक है। पेन स्टैंड जिन्हों कह दें आप इंग्लिश च पेन स्टैंड है, तो एक घनाव के आकार का बनया होया ना। देखो इहदी लंबाई चौड़ाई उचाई 6 पासे, तो यह अपने कोल घनाव के आकार का बनया होया कलमदान। इहदे विच कहंदा इहदी आपां दित्ती होई है पसार दिते है, जिस विच 4 शंकु के आकार के खड्डे बने हुए है। इहदे च 4 खड्डे किते हुए है जिन्हां विच असीं पेन टंगने हैं। आ देखो तुहानूं खड्डे कढ के दिखा दिंने आ। हाँ इस तरह के है शंकु के आकार दे। इहदे विच जदों होल किते खड्डे किते तां ही पेन रखे जाणगे ना इहदे च, फिर आपां इहदे विच पेन फिट कर सकते हाँ। तो इस तरीके नाल असीं जिहड़े 4 इहदे च होल किते है बेटे उन्हां दा असीं आयतन माइनस करांगे। कढना असीं की चाहते हैं, सानू इस घनाव दे देखो अगों पसार दिते है 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर है। इहदी देखो लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 15 10 ते 3.5 सेंटीमीटर घनाव की सानू दिती हुई है ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इस तो बाद जिहड़े खड्डे कड्ढे गए इहदे विचों उहदी सानू दिता है अर्ध व्यास 0.5 ते गहराई उहदी गहराई मतलब जिहड़ी खड्डे की देखो गहराई है वो की होएगी, थल्लों की देखिए तो ऊंचाई बन जाती है, उत्तों की देखो तो उन्होंने असीं डूंघाई या गहराई कह दिंदे आ। तो सानू 1.4 दिती है बेटे। तो असी इस दे जिहड़े खड्डे कड्ढे इहदा हुण असीं घनाव दा आयतन लकड़ी दा आयतन कढना भी इसनूं जिहड़ी लकड़ी लगी है उसकी कलमदान ते लगी लकड़ी दा आयतन पता करो किवें करांगे। पहलां तां पूरे घनाव दा कढ लिया असीं आयतन। घनाव दा आयतन की हुंदा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो तो सानू पता ही है। लंबाई भी दिती है सानू 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दिती हुई है 10 ते ऊंचाई भी दिती हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो असीं घनाव दा आयतन कढ लांगे पहला। उहदे चों जिहड़े 4 होल कढे गए है शंकु के आकार दे इहदा असीं आयतन माइनस करना है, बस होर कुछ नहीं करना। तो ये 4 का किवें माइनस करांगे, एक शंकु का आयतन कढ लैणे। इहदे विचों जिहड़ा हिस्सा निकलिया बाहर वो देखो बहुत ही छोटा हिस्सा है बेटे, तुहानूं विजिबल होवे तां देखो बिल्कुल ही छोटे जे आकार का है, शंकु के आकार का है, ठीक है। तो इसका आपां नूं सारा कुछ दिता है, इसका सानू रेडियस भी दिता होया अर्धव्यास 0.5 ते गहराई या ऊंचाई इहदी सानू दिती है 1.4 सेंटीमीटर। तो असी शंकु का आयतन कढ के 4 शंकुआं 4 नाल गुणा कर देंगे, तो 4 शंकुआं का जिहड़ा आयतन होएगा वो असी घनाव के आयतन चों माइनस करांगे।
तो साडे कोल कुल लकड़ी का आयतन आ जाएगा। तो देखो बेटे किवें करांगे इस सवाल नूं आपां इहनूं करन लई लिखो पहला लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुआं का आयतन। घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुआं का आयतन। घनाभ के आयतन का फार्मूला की हुंदा लिख लो। घनाभ का आयतन फार्मूला लिखो अगों बेटा LBH लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। हाँ जी लकड़ी का आयतन नूं बेटे असी वॉल्यूम कह दिंदे आ बराबर घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुआं का आयतन। 4 शंकु का आयतन। हुण घनाभ का आयतन की हुंदा फार्मूला LBH माइनस 4 गुना शंकु का आयतन बेटे की हुंदा शंकु का आयतन असी किता सी पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर H 1/3 पाई आर स्क्वायर H। हुण सारे अंदर च मुल भरने आ बस आपां अपने को इधर साइड ते लिख लो LBH दिते हुए सी किन्ने दिते सी 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर घनाभ दे दिते सी ना ते ऊंचाई सी 3.5 सेंटीमीटर। इत्थे भर दांगे LBH तां 15 गुना 10 गुना 3.5 माइनस 4/3 भी बाहर ले आइए पाई का मुल भर दो 22/7 आर स्क्वायर। हुण अपने को आर किहड़ा है शंकु का तो शंकु का सानू आर कितना दिता सी 0.5 सेंटीमीटर तो 0.5 कितनी बारी 2 बारी क्योंकि आर स्क्वायर है। H कितना दिता बेटे सानू 1.4 तो गुना 1.4। ठीक है इनू असी हुण हल करना है बस इसनू हल करके साडा उत्तर आ जाएगा। इनू गुना करोगे बेटे तो ये कितना आ जाएगा तुहाडे कोल करो गुना इनू 525 बन जाएगा। ठीक है माइनस इनू जदों हल करोगे सारे नू तो ये तुहाडे कोल हल करके आ जाएगा 1.466 अगे भी आई जाएगा। ठीक है इस तो बाद जदों इनू माइनस कर दोगे तुसी हल करके देखनी है गुना ही है सिंपल कुछ भी नहीं होर करना 7 दूनी 14 इधरों कट्टिया जाएगा ना अपना 0.2 आ गया गुना करके इनू हल करोगे जदों फिर माइनस करना है आ सारे नू इंदा आ गया अपने को 525 इंदा हल करके आ गया 1.466 जो माइनस करोगे तो ये तुहाडे कोल आ जाएगा बेटे 533.534। ठीक है इनू तुसी होर राउंड फिगर करना है 2 अखरां च लिखना है तो 523.53 आ गया। ये साडे कोल की आया लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन जिहड़ा हुंदा है आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब च हुंदा है। सारियां डिमेंशन सानू सेंटीमीटर च दित्तियां सी तो ये आयतन भी बेटे साडे कोल सेंटीमीटर क्यूब च आ गया। तो आपां देखिए हुण आपां की कीता सी सब तो पहला असीं फार्मूले कीते फिर असीं इहदे च खाली थावां कीतियां फिर 5-6 सवाल होर कीते। तो इन्हां नाल संबंधित सवाल बेटे पेपरां च जरूर आउंदे आ जरूर दोहराई करना बेटे। बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू।